दे परली साइड करो परली साइड करो परली साइड अच्छा गाड़ी रखती है वो होना है मौके ये बात चाहिए के दिखा जिले घर आए मैं घर दिक्खेआ गेट खुल्ला हा इक दरवाजा खुल्ला हा दूए साइड अंदर दिक्खेआ इ'यां इ'यै हे जि'यां मतलब खूनो खून होए अक्खा उक्खा भी बिल्कुल नहीं मतलब सारा इ'यै हा जि'यां दस सके भरा है मैं हाँ दो ही बेटे मेरे किन्नी किन्नी उम्र इंदी इक दी 16 साल है इक दी 18 साल ना किंदी इक ना नकुल दूए ना निखिल निखिल किन्नी किन्नी उम्र सी नी इक निक्का 16 साल दा है ते बड्डा 18 साल दा पता कुछ नहीं के कारण हो तुम मैं कैसे हुणे आई भाई कोई 5 5:30 बजे तक आई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ मैं डेली ड्यूटी जाती है निक्का मुंडा मेरा स्कूल जाता बड्डा बेचारा घर ही रहिंदा इहदा 11वीं च 2 पेपर रही दे ਅੱਛਾ दोनों घर कल्ले ते निक्का स्कूल आया मैं बड्डे फोन करा दी मैं डेली सी फोन करदी रोटी खाधी चाह पीती बच्चा केह् करा अज मेरी 11:30 बजे तक इहदा फोन व्यस्त रहा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਆਫ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸੁਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਇਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਆ ਥੱਲੇ ਦੁਆ ਥੱਲੇ ਦੁਆ ਨਿੱਕਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ 12 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੈਗ ਰੱਖਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵੜਦਾ ਇਹ 10ਵੀਂ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ इंदे कन्नै गुआंढिया कन्नै माड़ी मोटी दी मेरे मुड़े एक दो बारी मारिया हा घरे आह्ले कन्नै भी ऐही जिद्द पर मिगी इन्ना यकीन है कि एह् मारी नहीं सकदा पर इ'यां खुंदका लैंदा हा एह् मिगी इक दिन इन्नै बोलेआ मिगी तेरे दोनों बच्चे मारी ओड़ने इन्नी गल्ल मैं तू घरे आह्ले मारी तां हून मेरे बच्चे भी मारने दोनों अग्गों मिगी जिन्नी चीज अग्गों मिगी पता नहीं एह्दे दूजार दोस्त है ओह् काफी मतलब दूजार दोस्त बड़े है एह्दे to GMC Kathua initially for treatment, where doctors declared Nakul Singh as brought dead, while Nikhil Singh was referred to AIMS Vijaypur for advanced treatment. The body of Nakul Singh was shifted for post-mortem examination. On reaching the spot, the crime scene was secured and legal formalities were initiated. During inspection of the scene of crime, it was found that the iPhone belonging to deceased Nakul Singh was missing. FSL was called and relevant material evidence was seized and e-Sakshi proceedings were conducted as per law. During further course of investigation, several suspects were rounded up and questioned in detail. The ESU team of District Police Kathua did the CDR and technical analysis, which gave us an initial lead. Thereafter, during the sustained interrogation, suspect Parth Verma, alias Sumit, son of Somraj, resident of Ward number 9 Kathua, admitted his involvement in the commission of crime. The missing iPhone of deceased Nakul Singh was also recovered on his disclosure in front of a magistrate, and FSL team was again called, which proceeded further as far as the forensics is concerned. During disclosed that on 6th of May 26 at around 10:40 am, he visited the house of Nakul Singh and made a phone call to Mohit, alias Bobby, from Nakul Singh's phone at about 11:35 am, and at approximately 12:40 pm, an argument and physical scuffle reportedly broke out between Nakul Singh and Parth Verma over love interest involving a girl, which soon turned into a verbal and heated exchange and altercation, in which Parth Verma allegedly picked up a cricket bat lying in the room and struck Nakul Singh on the head, causing him to collapse. Meanwhile, Nikhil Singh, younger brother of Nakul Singh, returned home and entered the house,
Fearing that he would be caught, the accused allegedly attacked Nikhil Singh multiple times on the head with the same cricket bat, causing him to fall unconscious. After committing the crime, the accused allegedly left the cricket bat at the scene, took away Nakul Singh's phone and fled away from the spot. This cricket bat was later on seized when our team reached the crime scene. At around 5 p.m., the victim's mother, Jyoti Devi, returned home from office and discovered her sons lying in a pool of blood. Upon her cries for help, neighbors gathered at the scene and informed the police, after which the entire investigation in the case got initiated. Thank you. मैडम बताएं कि पार्थ वर्मा कहाँ से पकड़ा गया, क्या कठुआ से ही पकड़ा गया जब फरार हो चुका था? और इसमें मर्डर का एंगल क्या है, क्यों इसमें क्या इशू क्या रहा है इसमें? वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इट इज ओवर अ लव इंटरेस्ट ओवर अ गर्ल. जो अक्यूज था क्या उसकी फैमिली से रिलेशन था इसका, क्या कि वो था? ये आपस में दोस्त थे. ये तो पार्थ वर्मा जो है, जो बताया जिसने पूरा गुनाह किया, क्या वो कठुआ से ही पकड़ा गया या फिर वो कठुआ से ही पकड़ा गया. पार्थ वर्मा जो है, जब ये उसने अटैक किया उसके बाद ये कहाँ भागा? ये अपने ही इधर उधर में था, बट हमारे पास क्योंकि उसके फोन नंबर्स थे और हम उसकी सीडीआर और लोकेशन ले रहे थे, तो वो कठुआ में ही था. उसने कठुआ जिला नहीं छोड़ा था. मैं जब इनका स्कफल हो रहा था, क्या इन्होंने किसी तरीके का कोई ड्रग्स वगैरह कुछ लिया था, उसका कोई सेवन ये कुछ करते थे? देखिए, अभी ये चीज के बारे में मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी तो तभी हम बता पाएंगे. पार्थ वर्मा की उम्र, क्या कुछ पहले भी कोई ऐसी हिस्ट्री है या फिर ये फर्स्ट टाइम ही कुछ इस क्राइम में? ये जो है, ये जनरली कुछ छोटी मोटी स्नैचिंग या चोरी के अंदर ये इनका पूरा ग्रुप एक तो अब सामने आ ही गया जब उसने खुद कहा है कि एक लड़की जो है वो उसको भी वो भी पसंद करता था, मैं भी पसंद करता था, तो उसके पीछे इनकी लड़ाई हुई है आपस में. मैम, जो पार्थ वर्मा और जो मोहित जो क्रिमिनल्स है, उनकी एज कितनी है? पार्थ वर्मा इज 19 years old. मोहित वर्मा को आप क्रिमिनल मत बोलिए, बिकॉज उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है. उसको सिर्फ नकुल के फोन से पार्थ ने कॉल किया था. किस तरह से देखते हैं कि मतलब 19 साल की उम्र में जो है इस तरह के जो है क्राइम कर रहे हैं, ये अभी 18 प्लस के ही हुए हैं, तो कितना दहशत का माहौल जो है, क्योंकि सोसाइटी में तो काफी ज्यादा दहशत का माहौल जो है वो फैल चुका है. देखिए, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया और ये लव इंटरेस्ट जो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी आ रहे हैं, और उस चीज को लेके दिस क्राइम ऑफ पैशन दैट हैज हैपेंड, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. बट एट द सेम टाइम पुलिस ने इस केस को विद इन अप्रॉक्सीमेटली 24-25 आवर्स इसको क्रैक कर लिया है. तो बिल्कुल दहशत का माहौल जो इनिशियली इसमें बना था, उसमें पुलिस ने जिस तरीके से अपना काम किया है, जो अपना रोल निभाया है, उससे लोगों के बीच में एक ये मैसेज भी गया है कि अगर कोई इस तरीके की वारदात करेगा तो वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा. उसको जहां से भी पकड़ के लाना होगा हम लाएंगे और केस जो है वो सॉल्व करेंगे. पुलिस ने पहले क्या किया था कि बड़ी जल्दी इस मामले को सुलझा दिया जाएगा. मैडम, क्या देखते हैं सोशल मीडिया पर जो क्राइम वर्ल्ड बनाया जा रहा है, जो बच्चे एक दूसरे की देखा देखी में गैंगस्टर, गुंडे, वेपन, जब बड़े बड़ी ऐसी चीजों में संलिप्त हो रहे हैं, उस तरफ किस तरह से इन्हें रोका जा सकता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से नशा मुक्त अभियान एक चला है पूरे जम्मू कश्मीर में, और हम अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं. बच्चों की ये जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम उनको भागीदार बना रहे हैं. स्कूल्स, कॉलेजेस में सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में रोप इन करके उनको समझा रहे हैं, ताकि जितना हो सके नशे के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जा सके और लोग बढ़ चढ़ के सामने आए, इंफॉर्मेशन दें, और ये वाली चीज को हम जितना जल्दी हो सके अपनी सोसाइटी में खत्म कर सके. इसी तरीके की जो मुहिम है, जब सारी सोसाइटी एक जन भागीदारी होकर एक सब साथ में आएंगे, तो ये क्राइम जो है उसी तरीके से रोके जा सकते हैं, जिसमें नशा, चोरी, ये सारा कुछ एक साथ ही है. दूसरा जो है मैं ये कहूंगी कि पुलिस जो है अगर अपना रोल अच्छे से प्ले करती है और इस तरीके की वारदातों को सॉल्व करके जल्द से जल्द जो भी अक्यूज्ड है उसको, इफ वी पुट देम बिहाइंड बार्स, तो ये भी एक मैसेज आता है सोसाइटी को कि इस तरीके की वारदात के लिए जीरो टॉलरेंस है.
मैम मैम, आपने जो बताया इंडियन- कि आपने देखा बिकॉज द गर्ल हैड नो रोल टू प्ले इन दिस। मैम, जो इसका ब्रदर, जो डिग्रीज का ब्रदर जो इंजर्ड है, उसका फिजिकल स्टेटस अभी क्या है, क्या कंडीशन है उसकी, क्योंकि द प्राइम विटनेस है वहाँ पे आपके केस के लिए। अभी ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक या कोई भी डिटेल दे पाए, अभी भी वो क्रिटिकल ही है, आईसीयू में है। वी आर होपिंग कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इसके जो आई विटनेस कौन बने, किस प्रकार इसको एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, क्योंकि कोर्ट में बड़े टिपिकल्स होते हैं, क्योंकि जो प्राइम लोकेशन पे जो अक्यूज को फाइनली देखिए, विटनेसेस कौन बनेंगे उसका नाम तो मैं मीडिया में दूंगी नहीं, ठीक है ना। तो जो भी विटनेस बनेंगे वो हम जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके अंदर तो रहेंगे। आई विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ विटनेसेस। आप डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की बात करें तो किस तरह से जो है, कल भी हमने देखा कि एक बहुत बड़े जो है गैंगस्टर्स को पकड़ा गया है। अगर जल्द से जल्द उस आरोपी को हम पकड़ लेंगे एंड ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स। तो आई थिंक मैं इसको पूरे तरीके से ये तो नहीं कहूंगी कि ये न्याय है, ये न्याय उस दिन होगा जिस दिन ये कन्विक्ट होके अंदर जाएगा। अभी भी हमें इन्वेस्टिगेशन को एकदम फुल प्रूफ तरीके से करना है। और चोरी में मुलविस थे वो यहीं पे पिछले 2-3 दिन से JNK के अंदर ही उनकी लोकेशन आ रही थी, तो हमने स्पेशल टीम्स लगा के रखी थी पिछले 2-3 दिन से, और एक बहुत ही अच्छा ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ जिसमें वो हैंड ओवर किए गए दिल्ली पुलिस को फॉर फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन।